धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखे, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। सुखदेव गोस्वामी कहे छे, श्री शुक उवाच वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। हे परीक्षित महाराज, તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ પ્રશ્ન બહુ ઉત્તમ છે, કારણ કે તમારો આ પ્રશ્ન છે એનાથી ત્રણ વ્યક્તિઓનું કલ્યાણ થવાનું છે. કોનું? એક તો જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અર્થાત તમારું, બીજું એ પ્રશ્નનો જે ઉત્તર આપવા વાળો છું હું અર્થાત મારું, અને ત્રીજું આપણા બેયના પ્રશ્ન ઉત્તરીને જે લોકો સાંભળવાના છે એનું, પણ એક વ્યક્તિનું નહીં થાય. કોનું? જે કથામાં વાતો કરતા હશે એનું. હાલ કીધું છે આ પ્રથમ શ્લોકમાં, આનું કલ્યાણ નહીં થાય. ગમે એટલી કથાઓ સાંભળે પણ આવીને આવી જો સાંભળશો ને, હૃદયમાંથી કામ વાસનાઓ દૂર નહીં થાય ક્યારેય. 3 દિવસથી એક જ સિદ્ધાંત આવી રહ્યો છે કથામાં, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. હજી કીર્તન સાંભળીને હેઠા બેઠા છે, ભાગવત સાંભળજો ભાવથી. આવો ભાવ રાખશો તો ભાગવત જાશે નહીં અંદર. પૂર્ણ શ્રદ્ધાની જરૂર છે ભક્તો આમાં. ત્યારે કહે છે, નૃપ કહી અને સંબોધન આપે છે સુખદેવ ગોસ્વામી. લોકહિતમ નૃપ. નૃપ શબ્દનો અર્થ રાજા થાય. આમ નો એટલે મનુષ્ય, પ એટલે પાલન કરવા વાળા. તો એક પ્રશ્ન થાય કે પરીક્ષિત તો પોતાનું રાજ્ય છોડીને આવ્યા છે, હવે રાજા રહ્યા નથી, છતાં સુખદેવ ગોસ્વામી શા માટે એને રાજા કહીને સંબોધન કરે છે? અહીંયા નહીં, 10મ સ્કંદમાં, 11મા સ્કંદમાં, 12 સ્કંદમાં બધી જગ્યાએ સુખદેવ ગોસ્વામી હે રાજા, હે નૃપ, હે ભરત, આવા બધા સંબોધન, રાજાનું સંબોધન આપે છે. શું કારણ છે? કારણ એક જ કે આ સંસારમાં જેની પાસે ધન હોય એને રાજા ન કહેવાય. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે રાજા તો ઈ છે જેના હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ રૂપી ધન છે. કૃષ્ણના પ્રેમનું ધન, કૃષ્ણના નામરૂપી ધન જેની પાસે છે ઈ જ વ્યક્તિ વાસ્તવમાં સંસારનો રાજા છે. અને પરીક્ષિત મહારાજને કહી રહ્યા છે કે તમારી અંદર ઈ કૃષ્ણ પ્રેમ છે, એટલા માટે તમે રાજા છો. હે નૃપ, બધા લોકો સંસારમાં અન્નથી પાલન કરે અને તમે ભગવાનની કથા દ્વારા આ સંસારનું પાલન કરી રહ્યા છો. એટલા માટે લોક કલ્યાણ માટે લોકહિતમ, લોકોના કલ્યાણનો આ પ્રશ્ન છે. આનાથી 3 વ્યક્તિઓનું કલ્યાણ થશે. અને આત્મજ્ઞાની લોકો જે હોય, બુદ્ધિમાન લોકો જે હોય, એ આવા પ્રશ્નનો આદર કરે છે. એટલા માટે હે પરીક્ષિત, આ તારી આજુબાજુમાં જે ઋષિઓ બેઠા છે એ બધા તારો આ પ્રશ્ન સાંભળવા આવ્યા છે. કારણ કે ખબર હતી કે જો પ્રશ્ન થશે તો પ્રશ્નની સાથે ઉત્તર પણ હશે. પરીક્ષિત મહારાજના મનમાં સ્વાભાવિક થયું, મહારાજ કથા સાંભળવા તો અનેક દિવસો, હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા, મારી પાસે 7 દિવસ. મને એ કહો, શું 7 દિવસમાં હું ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરી લઈશ? એ સમયે સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે પરીક્ષિત 7 દિવસ તો બહુ મોટી વાત છે. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય ને 2 મિનિટ નો લાગે, 1 સેકન્ડ, 1 ક્ષણમાં ભગવાનનું ધામ મળે. પરીક્ષિત મહારાજ કહે સુખદેવ ગોસ્વામી, મને તમારી વાત ઉપર પૂરો વિશ્વાસ, પણ આ કળિયુગના જે છે કાળા માથાના એને સમજાવવા હાટું કઈક ઉદાહરણ આપો. ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે, ખટવાંગ નામો રાજર્ષિ. સાંભળ પરીક્ષિત, સૂર્યવંશની અંદર ખટવાંગ નામના એક રાજા થયા.
દેવતાઓ દાનવોની સામે યુદ્ધ કરવા એ ખટવાંગને આ પૃથ્વી ઉપરથી લઈ ગયા સ્વર્ગમાં. હજારો વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું અને યુદ્ધ દેવતાઓ જીતી ગયા. ઇન્દ્રએ કીધું કે હે મહારાજ ખટવાંગ, બોલો શું વરદાન જોતું છે? ખટવાંગ કે તમે દેવતાઓ લુખાવ છો, તમે શું વરદાન આપશો મને? ઈ બતાવ્યું મારું મૃત્યુ ક્યારે છે, હું ક્યારે મરવાનો છું. ઇન્દ્રએ જોઈને કીધું કે બે ક્ષણ પછી તમારું મૃત્યુ થવાનું છે. જલ્દી મને સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર ગંગાના કિનારા ઉપર હરિદ્વારમાં ઉતારો. સ્વર્ગની 2 ક્ષણ એટલે અહીંયા લાંબો ટાઈમ થાય. કાળનું વર્ણન આવશે હમણાં. તો એ સ્વર્ગમાંથી સીધા ગંગાના તટ ઉપર હરિદ્વાર આસન લગાવીને બેઠા, મનને ભગવાનના ચરણોમાં, બુદ્ધિ ભગવાનમાં જોડી અને 1 ક્ષણમાં શરીર છોડી અને ભગવાનનું દિવ્ય વિમાનમાં બેઠી ભગવાનના ધામમાં જાય. વરસ્તામાં સ્વર્ગ આવ્યું. ઇન્દ્રએ કીધું આ બોલો ખટવાંગ હમણાં આપણી હારે હતો અહીંયા. ત્યારે ઇન્દ્રએ કીધું ઉભું રાખો ઘડીક, આમ તમે હમણાં અહીંયા અમારી હારે હતા ને હવે વિમાનમાં? કે ઇન્દ્ર, જો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરતા આવડે 1 ક્ષણમાંય મળે, બાકી કરોડો જન્મ વ્યતીત થઈ જાય. તમારી જેમ સ્વર્ગના ભોગ ભોગવવામાં જે રહી જાય, ત્યાં સ્વર્ગમાં રહી જશો. વિમાનમાંથી ખટવાંગ મહારાજે જવાબ આપ્યો. અને ઈ સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે પરીક્ષિત મહારાજને, પરીક્ષિત, ખટવાંગે 2 મુહૂર્તમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લીધા. તારી પાસે 7 દિવસ છે. મૂંઝા શું કામ? પરીક્ષિત મહારાજ કે કાંઈ વાંધો નહીં, કરો કથા પ્રારંભ. અથ કથા પ્રારંભ કે જે શ્રોતવ્યાદિની રાજેન્દ્ર નૃણામ સંતિ સહસ્ત્રશ અપશ્યતામ આત્મતત્વમ ગૃહેશુ ગૃહમેધિનામ. હે પરીક્ષિત, આ સંસારની અંદર રહેવા વાળા જે લોકો છે, જે આત્માના તત્વને જાણતા નથી, જે આ શરીરને જ હું છું એમ માની લીધું છે, એવા આત્મતત્વને જે જાણતા નથી, એના માટે કહેવાની ને સાંભળવાની હજારો વાતો છે. ફાલતુ બકવાસ, જેને શાસ્ત્રની ભાષામાં પ્રજલ્પ કહેવામાં આવે છે, એવા પ્રજલ્પની આ દુનિયામાં કમી નથી. અને એવો પ્રજલ્પ કરવાથી કાળ નજીક આવતો જાય છે. તમે સાંભળ્યું કાલ પ્રભુપાદજીનું ઉદાહરણ, દેડકો ડ્રાવ ડ્રાવ કરે અને સાપને ખબર પડે, સાપ આવે અને દેડકાને ખાઈ જાય. એમ હે રાજા, આ સંસારના જે લોકો ભગવાનની કથા નથી બોલતા અને સંસારનો મિથ્યા બકવાસ કરે છે, એને આ કાળ તરત પકડી લે છે. નિદ્રયા હિર્યતે નક્તમ વ્યવાય ન ચ વાવય દિવાચ અર્થે હયા રાજન કુટુંબ ભરણૈનવા. અને આ સંસારના લોકો ફાલતુ બકવાસ કરતા કરતા શું કરે છે? તો કે છે રાત્રિનો જે સમય મળ્યો છે, કાં તો એને સુવામાં પસાર કરે અને કાં તો એને સ્ત્રીઓની સંગતિમાં પસાર કરે. અને દિવસ દિવાચ અર્થે હયા રાજન, અને દિવસ જે છે એ કુટુંબનું પાલન પોષણ કરવામાં વ્યતીત કરે. અને આવી રીતે એ મૂર્ખ લોકો જે છે પોતાના આયુષ્યને વ્યતીત કરે છે. દેહાપત્ય કલત્રાદિ આત્મસૈન્યેશ્વ સત્વપી તેષામ પ્રમત્તો નિધનમ પશ્યનપી ન પશ્યતિ. કે છે કે આ કુટુંબનું પાલન કરવામાં
श्योर से कथा सुबह आता अब आयो सुबह कहता पी लेते 60-70 रुपए दिन के रात ने डायबिटीज ये द्वारका जी है। द्वारका महाराज। हाँ द्वारका महाराज होती है मेरे महादेव के कारण पर ये टूटी होती है तो दीदी हम सभी की प्रार्थना स्वीकार भी होती है और जैसे हम सभी हमारा जुड़ा हो सिर्फ एक ही जड़ से आप सभी को याद है किस प्रकार से जड़ अगर मजबूत होती है तो उसके पत्ते भी हरे भरे होते हैं उसकी टहनियां भी हरी भरी होती है और वो मजबूत खड़ा रहता है जड़ से जुड़े हुए हैं और मेरे महादेव से अगर हम अलग होने का प्रयास करें या फिर हम कभी भी मंदिर जाना छोड़ दे तो निश्चित ही हम उस जड़ से अलग होकर ना ही हरे भरे रह पाएंगे और ना ही पनप पाएंगे। इसलिए हमेशा महादेव की शरणागति में रहकर हम महादेव की चरणों में रहकर उस जड़ से जुड़कर हम निरंतर ही महादेव का भजन करें कि सभी ने श्रवण करे हैं काल हरने के लिए महाकाल बन जाते हैं दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ कहलाते हैं कि सांसारिक जीवन में जीने पसंद नहीं पहुंचे इसलिए नीलकंठ वो कहलाए और सभी के दुख दर्द को दूर करा ने श्रवण करा है किस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि को जिनको मृत्यु का कभी भय नहीं सताया वे अजर और अमर निरंतर है। आप सभी को ज्ञात है डर और भय अगर हमें सताता है तो काल भैरव स्वयं आते हैं रक्षा करने के लिए जो कि भगवान महादेव के 5वें रुद्र अवतार हैं 11वें रुद्र अवतार हैं काल भैरव जो आते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत यही है इसलिए वेदों को देख महादेव जी कहलाते हैं। हमेशा अगर हम देखें कि जीवन हमारा प्रारंभ कहाँ से हुआ है और कहाँ इसका अंत होना है कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी जिसके अंतर्गत लगभग 15 करते रहे आनंद अपने जीवन को कृतार्थ कर सके आनंद कर सके ऐसे और इस धर्मशाला के अंतर्गत उच्च गुरुदेव ने हम सभी को बताया है निःशुल्क रूप से कन्या विवाह भी प्रतिदिन इस तरह से कराया जाएगा। आपको अगर आपकी शादी की तारीख कभी भी फिक्स होती है तो आपको किसी सम्मेलन के लिए या किसी विशेष मुहूर्त के लिए रुकने की आवश्यकता की तारीख रुकने की भोजन की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाएगी ताकि ये प्रतिदिन एक कन्या विवाह उस धरा पे हो सके धर्मशाला बनने के बाद में। और आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा जो कि हमारी 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। कथा का प्रथम दिवस पोथी का आगमन भी हो चुका है। सुंदर गुरुवरों गुरु साहेब
सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कि कहा श्री शिवाय अमृतोभ्या पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर पचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके लिए हम सबके लड़ने डॉक्टर कल्लूजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमात्मा बुद्ध विख्यात पूज्य गुरुदेव के भगवत चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा में हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। और उससे पहले आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से जो हमारी संस्कृति में निरंतर अग्रसर रहता है स्वागत का जन्म पूज्य गुरुदेव का स्वागत समिति द्वारा और मुख्य जजमान द्वारा करा जा रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से चित्रकूट नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा के ये सारे प्रकल्प चलते हैं। साथ में एक और संकल्प पूज्य गुरुदेव ने ले रखा है। आप सभी को ज्ञात है रुद्राक्ष सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और इस रुद्राक्ष का महत्व यह स्वतः ही जान सके, इस रुद्राक्ष का महत्व वो समझ सके। इसलिए पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। देखिए ये प्रतिदिन वितरण किए जाते हैं। रुद्राक्ष सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में रुद्राक्ष ना ही कुरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही पहुंचना है और रुद्राक्ष आप लेकर इसका महत्व स्वतः ही जान सकेंगे, समझ सकेंगे। इसलिए ये संकल्प जो गुरुदेव ने लिया है तो आप प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 श्री सनेही शर्मा भ्रमण गुजरात से सुनर प्रकल्पों से आप बोल सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और उन गुरुदेव के साथ में खड़े हो सकते हैं। ब्रह्मा जी की भी सेवा का एक समय होता है कि इतनी बजे करना, सेवा का भी एक समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना। भगवान कृष्ण की भी सेवा का समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना। पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान की सेवा का कोई समय नहीं होता। शिव तो कहता है जब तेरे हृदय में शिव तत्व जागृत हो जाए तब तू मेरी शरण। जब
नारायण भगवान की सेवा का समय है, ब्रह्मा जी की सेवा का समय है, राम जी की सेवा का समय है, कृष्ण जी की सेवा का समय है, माँ दुर्गा भवानी की सेवा का समय है। तो बोलेंगे नहीं। शिव जी की वीरता में केवल एक चीज है कि आपके हृदय का भाव, आप जितना शिव का स्मरण करते हैं, आपके हृदय से आप जितना शिव का भजन करते हैं, आपके हृदय से आप जितना शिव भक्ति को धारण करते हैं, भय से शिवता प्राप्त नहीं, भय से कभी शंकर मिला ही नहीं। जिन्होंने भय दिखाया शंकर भगवान को धतूरा मत चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र ऐसे मत चढ़ाना, स्नान ऐसे मत करना, शिव का स्मरण ऐसे मत करना, शंकर की भक्ति ऐसे मत करना, शिव नाम ऐसे मत लेना, शंकर की स्मरण ऐसे मत करना। जिसने भय दिखाया शंकर भगवान, भय से कभी लोग आडंबर में पड़कर, दिखावे में पड़कर, कहीं ना कहीं गलत विचारों में पड़कर शिव से दूर होते थे। और अंदर मेरी जीजियों, मेरे पिता, मेरी बेटी, पिता, मेरी माता, मेरे भाई, शिव कथा सुनने वालों के मन में इतना उलझन सा एक प्रश्न खड़ा रहा, क्यों गुरु जी हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, ऐसा क्यों? किस थोड़ा विचार करिएगा कि पाप कर्म का दंड तुरंत प्राप्त, और ये केवल आपका या हमारा प्रश्न नहीं है, ये केवल आपका और हमारा प्रश्न नहीं है। भगवान देव महादेव के साथ में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और महाकाल वन उज्जैनी में पहुंचा। वरावंती का प्रदेश में महाकाल वन में जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया कि पुण्य का फल लेट मिलता है, पर पाप का फल तुरंत प्राप्त होगा, तुरंत मिलता है। भोगना ही पड़ता है, और पाप करने वाला तो तुरंत फलता भी है, फूलता भी है, और उसका पाप कर्म उसके सामने घड़ी खुशी क्षण। तो शिव जी ने उत्तर दिया, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर, मेरे शिव, मेरे उगड़दानी, मेरे शंकर उत्तर देते हैं, पार्वती ज्वार बोने वाला, मक्का बोने वाला, गेहूं बोने वाला, धान बोने वाला, सब्जी लगाने वाला,
रहा है, मूंगफली लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, सोयाबीन लगा रहा है, धान बो रहा है, गेहूं बो रहा है, बाजरा बो रहा है, मक्का बो रहा है। किसान फसल लगाता है तो फसल आने में देरी लगती है, पर फसल लेट आती है। किसान ने फसल लगाई उसको आने में देरी होगी, पर किसान जैसे ही फसल लगाता है उस फसल के साथ में थोड़ा घास, थोड़ी दुर्बा, थोड़ी दूर। अब जरा विचार करिए, किसान ने तो नहीं लगाया, घास क्यों लगाया, खरपतवार क्यों लगी, उसके साथ में दुबा क्यों लगी, घास क्यों लगी, खरपतवार क्यों लगी? इसलिए दवाई डालने वाला किसान जब दवाई डालता है, राखोली डालने वाला जब राख डालता है, नीम का रस डालने वाला जब नीम का रस छिड़कता है, तो सुनो पार्वती, फसल उस नीम के रस से जलती है। मत धोरे धर्म कर वरना कछुआ, हरे रो अज्ञानी मत कर तेरे कर्म तो ही पाएगा जैसा किया तेरे आगे मत वरना से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जब अपने पुण्य की प्रबलता करते हो, भजन की प्रबलता को बढ़ाते हो, सत्कर्म की प्रबलता को बढ़ाते हो, तो आपका कर्म अपने आप जलता चले जाता है। बस बस रतनगढ़ की मेरी जीजियों, रतनगढ़ में मेरी माता, मेरे जीजा, कोई पुण्य आपके और हमारे जीवन का कोई पुण्य प्रकट हुआ, जो हनुमान जयंती के इस पवित्र अवसर कोई पुण्य और वो पुण्य कोई साधा करना, वो पुण्य कोई साधारण। तो तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का है अपने द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा किसी को धोखा ना, किसी को धोखा। दूसरे नंबर पर है कोई कितना भी महापुराण की कथा करती है, कथा सुनने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को दूसरी बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई कितनी भी निंदा करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोसे, अपशब्द पर अपशब्द बोले। सभी लोग गुनगुनाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी, जन के बोले जरा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला और उड़ जाएगा हंस, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा। अब कई माताएं कहती गुरु जी को हमारे पड़ोस में
बेटी दे। आज अक्षर से कहता है। हमारा विवेकानंद तुमने शुक्रान सुनी है ना, शंकर की कथा सुनी है ना। जिसका बाप कलेक्टर हो, जिसका बाप मिनिस्टर हो, ईमानदारी से बोलना, उसकी लड़की को ससुराल वाले तकलीफ दे सकते हैं? जम के बोलो जरा, जम के। अरे आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो। नहीं, जिसका बाप एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, उसकी लड़की को ससुराल में दुख मिल सकता है क्या? पिताजी ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, और पिताजी अपने थाने में फोन करेगा और फोन कर कर बोलेगा जरा उठा ला, जरा उठा ला। मेरी बेटी को कष्ट दे रहा है, मेरी बेटी को दुख दे रहा है, मेरी बेटी को तकलीफ दे रहा है। बस कलेक्टर की बेटी को दुख नहीं मिलता, एसपी की बेटी को दुख नहीं मिलता, आईटी कमिश्नर की बेटी को दुख नहीं मिलता, कोई मंत्री संतरी अच्छे पद पर बैठा है और उसकी कोई बेटी है उसको दुख नहीं मिलता। उसी तरह जिसने शंकर भगवान को अपना बाप बना लिया उसकी बेटी फिर तो किस लिए? और उस पिता को लगा ये मेरी बेटियां और मेरे दामाद कथा सुनने के लिए आएंगे। तो घर से चली थी तो ये सोच रही थी इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी। बाहर तक गर्मी थी, कथा के मंडप में जैसे ही आके बैठी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में सिर्फ धीरे 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 पंखा कर रहा है। और इसीलिए हमको बाबा के हमको भगवान संसद की शरण नहीं आ रही है, रिटर्न क्लियर नहीं आ रहा। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापत, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी है? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना चाहिए। बेलपत्र ला तो मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई थी। सीटी स्कैन पत्र आप लोग एलईडियां जो लगी हैं, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली हैं। मेरे पति हमने सीटी स्कैन हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने कहा कि इनके कान में एक गठान होगी और उसको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसकी जांच। हम लोग घबरा गए, पूर्ण तरह से हमें घबराहट हो गई, हम लोग घबरा गए। तब एक लोटे जल और एक बेलपत्र का किसी ने वर्णन किया। हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल का महत्व। उसके कहने पर हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपने पति को पीने को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर पति को दे दी, जल
कान पर लगा देती। जब थोड़े से दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का तारीख निकाल कर दी और ऑपरेशन की तारीख आई, उससे पहले उसको दिखाने के लिए फिर गए तो डॉक्टर ने बोला आपके पति के कान की जो गठन थी वो पूरी गल चुकी है, अब वो बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने तो हमको डरा दिया था, पर बाबा ने हमारा साथ, शिव ने साथ। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया। भगवान शिव से अपना एक संबंध जोड़े। और संबंध कोई दूसरा नहीं, शंकर भगवान से अपना बाप और बेटी का संबंध जोड़ लो, बाप और बेटे का संबंध जोड़ लो, तो वो पिता के रूप में अपने संबंध को निभाता है। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता तेरा मेरा सबसे तू मेरा हो मैं तेरा महापुराण की कथा सुनने वाले को तीन बातों का ध्यान देना। पहला, किसी को धोखा नहीं। दूसरा, महापुराण की कथा सुनने वाले को कोई शब्द, शंकर की भक्ति करने वाले को कोई आड़ा टेढ़ा बोले, आप शब्द करे, गालियां दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितना ही कोसे, कितना ही शब्द करे, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने में कोई आड़ा टेढ़ा शब्द बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा जवाब स्वयं वो काल अधिपति महाकाल राजा देगा, तुम्हें देने की जरूरत है। पिछली बात का ध्यान दीजिए, अपने हाथों से हो सके 70 उत्तर मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा, प्राप्त होगा नहीं होगा कोई कोई। रतनगढ़ में दिनेश लाहौटी परिवार रतनगढ़ अगर ये कथा करवा रहा है और पूरा रतनगढ़ इसमें जुड़कर बच्चा बच्चा एक एक बेटियां आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कहीं शंकर ने सेवा करने का मौका लोगों ने अपने घर के बाहर पानी की कैन भर रख दी, गिलास भी रख दी, पानी भर
हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा वास्तव में रतनगढ़ के लोग सेवा के भाव शब्द है, पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब देने का इंतजार करना, उस शंकर आपका जवाब खुद देना और तीसरे नंबर पर अपने शरीर का उपयोग करना। सब शिव कथा चौबीस हजार श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा का ब्राह्मण ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, फिर भी ब्राह्मण एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाले एक सन्यासी, एक भगवती साधक, एक आध्यात्मिक को सलाह देती है वो आए यदि लगन है और विश्वास, लगन और विश्वास पक्का है, भरोसा यदि पक्का है तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शिव देता है। अरे पूजा की थाली हम ये करेंगे और बोले कहाँ से हम बैठो, कहाँ से हम बरती वो शरण चढ़ी है और बोले हमको किसी ने कहा कि शंकर भगवान को चूरमा बनाया करो, भगवान को भोग लगाया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को पीताम्बर वस्त्र दिया करो, किसी ने
शिव कथा करें। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है शिव महापुराण में। देते हुए कथा को बड़ा विराम की वजह रहे हैं। आप लोग पंचायत से आप लोग बाहर निकलना आरती प्रारंभ होगी, सभी लोग बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करेंगे। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देवल के महादेव पर पूर्ण भरोसा रखते हुए धीरे धीरे पंडाल खाली करिए, धीरे धीरे पंडाल खाली करिए। पूर्ण भरोसे के साथ शिव जी का स्मरण करते हुए पंडाल खाली करना प्रारंभ करिए। छोटी सी पंडाल धीरे धीरे खाली करना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे खाली करना प्रारंभ करिए। आप लोग बाहर पाइप निकल गया। बारह जो धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।